A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of the subject economics. Dear students, in the previous lecture, we have completed our chapter number 12 of the book Macroeconomics, and the name of the chapter was Balance of Payment. Today, we are going to start our 10th chapter of the Macroeconomics, and the name of the chapter is Government Budget and the Economy. Dear students, in this chapter we are going to study about the concept of government budget, about the objectives, different objectives of government budget. We are going to discuss about the structure or the components of budget, which contains the budget receipts, revenue receipts, capital receipts, and budget expenditure, which includes the revenue expenditure and capital expenditure. Thereafter, we are going to discuss about the budget deficit and then balanced and unbalanced budget. So let's get started about the chapter. The very first concept is the meaning of or the concept of government budget. Dear students, we all know that 1st February is a well-known date in the context of the presentation of annual budget by the finance minister in the parliament for its approval. Initially, the budget is presented by the finance minister and then it is approved by the parliament and then only it is implemented. And who used to present the government budget? The finance minister. At present, the Nirmala Sitharaman is the finance minister. Now see what is the meaning of the government budget. See, government budget is a statement of expected receipts and expenditures of the government. क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपकी एक्सपेक्टेड इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स को बताता है, किसकी? गवर्नमेंट की. दैट रिवील्स द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट to achieve twin objectives. And what are the objectives? Objective of growth with stability, growth as well as stability. Now see further, the government budget unfolds. जो गवर्नमेंट बजट है वो 2 एलिमेंट्स को अनफोल्ड करता है, एक्सप्लेन करता है. कौन कौन से? द फर्स्ट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर पास्ट 1 ईयर. इन द प्रीवियस ईयर गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस रही है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एंड जो नेक्स्ट ईयर में गवर्नमेंट के प्लान्स एंड पॉलिसीज़ हैं वो. The programs and policies of government as presented in the budget are known as budgetary policy or the fiscal policy. फिजिकल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी क्या है? जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं रिगार्डिंग द गवर्नमेंट बजट, उनको हम लोग फिजिकल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी बोलते हैं. ठीक है. और इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, रेवेन्यू एस्पेक्ट एंड expenditure aspects. Now see what are the different objectives of government budget. The very first objective of government budget is the GDP growth. So GDP growth is one of the most important objective of the presentation of budget, and it can be achieved by the 2 ways. And what are the different 2 ways? The very first is by making public investment expenditure. क्या करना? Public investment expenditures को execute करना, उसके थ्रू आप GDP growth कर सकते हैं. And the second one by inducing private investment expenditure. और क्या करना? जो private persons हैं उनको investment के लिए induce करना, motivate करना. Now see the second point, that is the allocation of resources in this प्राइवेट इंटरप्राइजेस. जनरली अगर हम लोग प्राइवेट इंटरप्राइजेस की बात करें तो व्हाट दे यूज़ टू डू, दे यूज़ टू इम्प्लाई और पुट ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेयर द प्रॉफिट इज़ कंपैरेटिवली वेरी हाई. ठीक है. बट दे डोंट वांट टू एंटर इन सच फील्ड्स वेयर द प्रॉफिट ऑफ अमाउंट इज़ लो बट द वेलफेयर इज़ हाई. सो द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री डायरेक्ट्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. गवर्नमेंट क्या करती है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को करती है किस तरीके से? इन सच अ वे दैट देयर इज़ बैलेंस बिटवीन, एक बैलेंस बना रहे किसके बीच में? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव के बीच में. द नेक्स्ट वन, दैट इज़ द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स. अच्छा, what is the public goods? These are the goods which satisfy the collective needs of people. जो कि लोगों की collectively need को fulfill करते हैं, उन goods को हम लोग public good बोलते हैं. जैसे क्या हो गया? लॉ एंड ऑर्डर हो गया, फॉर एग्जांपल रोड्स हो गए, है ना, कम्युनिटी सेंटर्स हो गए, हेल्थ सेंटर हो गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई. ये सब क्या हैं? आपके पब्लिक गुड्स हैं. ठीक है. आगे देखिए, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज इन द मार्केट इकोनॉमी डू नॉट अलाउ इनफ प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स. अगर हम लोग मार्केट में डिमांड और सप्लाई की बात करें तो इनसे सिर्फ कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, बट पब्लिक गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो मिनिमल होता है. सो द
गवर्नमेंट यूज़ टू इंटरफेयर थ्रू इट्स बजटरी पॉलिसी, फंड्स प्रोवाइड करती है ताकि जो सफिशिएंट अमाउंट में आपके कौन से गुड्स हैं, पब्लिक गुड्स हैं, फॉर द कॉमन पब्लिक, फॉर एवरी वन, दैट कैन बी प्रोड्यूस एंड कैन बी यूज्ड बाय द पब्लिक इन अ proper scale. Next one, that is the redistribution of income and wealth. Government of budget shows its comprehensive excise on taxation and subsidies. गवर्नमेंट क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ करती है किसके थ्रू बेटा, टैक्सेशन एंड सब्सिडीज पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट यूज टू इम्पोर्ट द हायर अमाउंट ऑफ टैक्सेशन on the people who can afford a very good purchasing power and used to provide the subsidies to the poor people or the weaker section of the society. See further, equitable distribution of income and wealth is a sign of social justice. और income और wealth का जो equitable distribution है, that is a good sign of the social justice, जिससे कि इंडिया जैसी कंट्री का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, that is the welfare of state, वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है. नेक्स्ट इसने आपको बताया दैट इज़ द बैलेंस रीजनल ग्रोथ. बेटा इफ़ यू टॉक अबाउट द बैलेंस रीजनल ग्रोथ देन सी गवर्नमेंट बजट शोज़, जो हम लोग बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट का बजट है वो क्या करता है, अपने जो फंड्स हैं उन्हें जनरली बैकवर्ड एरियाज़ में इम्प्लीमेंट करवाता है. वाई? बिकॉज द businessmen or the entrepreneurs, they used to imply or put on their resources in the developed area. वो developed area में अपने resources को already employ कर चुके हैं और कर रहे हैं, but they don't want to go in the backward area. But what the government is doing, government अपनी budgetary policy के through ऐसे particular places पे जो कि backward हैं, जो deprived हैं, उनमें क्या करती है, funds imply करती है, जिससे कि जो government है वो अपने एक ऑल एरिया का, जैसे कि जो हमारे रूरल एरिया और अर्बन एरिया हैं, इनके बीच में एक बैलेंस बना सके. देखिए आगे इसने क्या बताया, दिस इज़ अचीव थ्रू द लिबरल टैक्स लॉज. और ये कैसे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है, लिबरल टैक्स लॉज के थ्रू क्या है गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है. क्या है, मोटिवेट करती, इंड्यूस करती है एंटरप्रेन्योर्स को कि आप रूरल एरिया में आके क्या करिए, अपना बिजनेस स्टैब्लिश करिए. उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, टैक्स हॉलीडे प्रोवाइड करती है, रिलैक्स प्राइसेस पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है. ठीक है. नेक्स्ट इसने आपको बताया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. देन सी बजटरी पॉलिसी फोकसेस ऑन द जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंटरप्राइजेज. क्या करती है गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करती है किसके थ्रू, थ्रू द इन्वेस्टमेंट इन द पब्लिक इंटरप्राइजेज. नाउ सी बजटरी पॉलिसीज प्रोविजंस आर मेड फॉर स्कीम्स. कुछ स्कीम्स जैसे कि एक एग्जांपल से यहाँ पे दे रखा मनरेगा, दैट यूज टू प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करती है स्पेसिफिकली उन एरियाज़ में जहाँ पे कि जो रिसोर्सेज की बहुत शॉर्टेज है या जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं. एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट इज़ द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. सी ओवर हेयर, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज आर बाउंड टू जनरेट ट्रेड साइकिल्स ऑफ द बिजनेस और द बिजनेस साइकिल. ठीक है, जो फ्री प्ले है मार्केट फोर्सेस के, दैट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई, इनकी वजह से जो आपके ट्रेड साइकिल्स हैं या जो बिजनेस साइकिल है उनमें क्या आते हैं, फ्लक्चुएशंस आते हैं. अब ये इसके स्टेजेस क्या हैं, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड बूम आर द स्टेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल. तो जो आपकी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ ऑलवेज कमिटेड. क्या है, कमिटेड है किससे, किसके लिए, टू सेव द इकोनॉमी फ्रॉम द बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन. इन साइकिल फ्लक्चुएशन से बिजनेस को या फिर इकोनॉमी को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इकोनॉमी में हमेशा एक स्टेबिलिटी बनी रहे. ये है आपका इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉइंट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट. Its explanation we have seen. Thereafter the objectives of government budget we have discussed, in which GDP growth, allocation of resources, provision of public goods, redistribution of income and wealth, balanced regional growth, employment opportunities, and last but not the least economic stability that has been discussed. This is all about today. God bless you all.